Okay, so last time we had discussed the sum based on formulae. Okay, and the topic which we had discussed is force experienced by magnetic field due to long straight solenoid and toroid. Before that, we had discussed the sum based on Ampere's circuital law and force on a moving charge in uniform magnetic field. Today, again, we will see the sum based on force on a moving charge in uniform magnetic field. Okay, but here, while solving the sums, you don't have to use the formula directly. You can able to solve these problems only when you will understand that formula. Okay, you don't have to just substitute the value here in the formula and you will get solution. The problems are not like that. Here you have to think critically. Okay, you have to try to understand the formula. Okay, what different things in the formula, how different things in the formula are related with each other. Then only you will able to solve these sums. Okay, which we are going to discuss today. So let's go for the first one. I hope this image is clearly visible to you. I just give me a second. Okay. So let us first discuss the sum based on this formula. F is equal to, last time we had already discussed. Let me revise the few things before we go for this one. Okay. So if there is, suppose there is an uniform magnetic field of magnetic induction B bar, and if there is any charged particle carrying some charge Q, suppose this charged particle is moving in this uniform magnetic field with some velocity, okay, and the direction in which it is moving, suppose that velocity vector is making an angle theta with the direction of magnetic field, then such charged particle, when it moves in a magnetic field, velocity takes and that is give this expression Q into A bar cross B bar. So last time we had seen, we have solved some sum based on formula S to Q V bar cross B bar. Okay, where Q represents the particle, V is velocity of the, B is the magnetic field in which the charged particle is moving. Okay. So let us now see some theory questions based on this. Now here, distance is between and B bar. Okay. And if the force is a vector मैम quantity, so it has some direction. मैम Yes. एक्चुअली आपका आवाज बहुत हाँ ज्यादा ब्रेक हो रहा है. okay. I will just recheck. Okay, now can you hear me properly? Yes मैम. Yes, ma'am. Uh, if you face the problem, then just let me know. Okay. So last time we had discussed Okay here, मैम. the F equal to Q into V bar cross B bar. Okay. Now force is a vector quantity and it has some direction. So here the direction of force is given by Fleming's left hand rule. And as per this formula, the direction of force, whenever the charge particle in magnetic field, the direction of force is always perpendicular to velocity as well as the magnetic field. Okay. ये एक्सप्रेशन में भी दिख रहा है. एक्सप्रेशन में क्या है? Q into V bar cross V bar. So the force will always be directed perpendicular to the direction of velocity as well as it will be perpendicular in the direction of magnetic field. तो अभी कुछ थियरी क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर. और ये फॉर्मूला whether you have really understood this formula or not. So let us check that with these questions, logical questions which are based on this formula. Okay. So here is the first question. See what question is given. What is asked in this question is: no force acts on a current carrying conductor
in a magnetic field when angle between current and magnetic field is. Just now we have discussed about charged particle, but the same is the case in case of current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर में भी वही केस है. ओके, वो भी हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था. इफ देयर इज एनी करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग सम करंट आई placed in some uniform magnetic field, okay, B bar. Okay. Suppose L is the length of this conductor and theta is the angle made by this conductor in the direction of magnetic field, then such current carrying conductor also experiences a magnetic force, and that force is given by the expression I L bar cross B bar. Okay. So now see what is asked in this question is no force conductor. So the question is, even though the conductor is placed in a magnetic field, it is experiencing zero force. And when this will happen? So what should be the angle between current and magnetic field? Current or magnetic field में, so when you write this expression for force in terms of magnitude, you will get this as I L B sin theta, where theta is the angle between, theta किसके बीच का angle है? Magnetic field and the length of the conductor. So for which angle of theta the force experienced by the conductor will be zero? Are you getting this question? We had already discussed different cases. Okay. How force vary with respect to theta. So force कब zero होगा? It depends on sin theta. Theta, angle between length of the conductor, current carrying conductor and magnetic field. बताइए आंसर क्या होगा? जीरो. जीरो होगा, करेक्ट आंसर है. जीरो होगा मतलब पोजीशन क्या होगी कंडक्टर की? द करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहेगा. So when theta will be zero, sin theta will be zero. Sin zero is zero. So this force experienced by this conductor will be zero. Okay. So let's move towards next now. Read the question first on your own and tell me what are the given things in the questions. Question में क्या दिए है देखो. A charged particle is moving in a magnetic field, experiences a resultant force. Same question. कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और एनी अदर चार्ज पार्टिकल, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, देन what kind of force it will experience, the charge particle will experience. Okay? या फिर डायरेक्शन दिए फोर्स की, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, in the direction opposite to that field, in the direction perpendicular to both the field and its velocity. Okay. So कैसे ये पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे? बी, अपोजिट. अपोजिट होगा. और बाकी को लोगों को क्या लगता है? See again, you can use here formula. फॉर्मूले में क्या है? F बार इज इक्वल टू Q इंटू V बार क्रॉस B बार. तो F की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V बार क्रॉस B बार. फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में V बार क्रॉस B बार, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है. Okay, so V बार का और क्रॉस B बार का मतलब क्या है? ये जो फोर्स है that will be perpendicular to the direction of velocity as well as direction of B मतलब मैग्नेटिक फील्ड. एक्सप्रेशन से भी हमें यहाँ पे फिर से पता चलता है कि फोर्स से है ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन V बार क्रॉस B बार, ये प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड है. सो क्रॉस प्रोडक्ट है तो V बार और B बार
वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है उस डायरेक्शन को भी फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक उस डायरेक्शन को भी फोर्स क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. Okay, so whenever charge particle moves in a magnetic field, whatever force it experiences, that force will be in the direction perpendicular to v bar as well as b bar. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाले हैं, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Because here the direction of force is given by Fleming's left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule सबको पता है. If we stretch the index finger, middle finger and thumb of left hand mutually perpendicular to each other, तीनों एक दूसरे को perpendicular रख के, such that index finger points along the direction of magnetic field. Suppose index finger तुम्हारी magnetic field के direction में है, middle finger is along the direction of current और moving charge. Charge जिस direction में जा रहे हैं उस direction में suppose moving charge है, then your thumb will represent the direction of force experienced by the moving charge. I will display the image of this. How you have to stretch the finger and have these three fingers point in different directions. Okay. Later, but remember Fleming's left hand rule. By using Fleming's left hand rule, you can find out the force acting on a moving charge in a uniform magnetic field. और सिंपल इस फॉर्मूले से भी पता चलता है कि फोर्स यहाँ पे वी बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में रहेगा. वी बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में मींस व्हाट, इट विल बी परपेंडिकुलर टू वी बार एज वेल एज बी बार. फोर्स वी बार मतलब वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर रहेगा. ओके, सो फॉर्मूला पता है तो ये भी हम लोग को क्लियर है दैट दिस हियर द फोर्स विल अगेन will act in the direction perpendicular to v bar as well as b bar. So let's move towards next now. इसके रिलेटेड कुछ सम्स देखे थे. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर्ड द कंसेप्ट व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. पहले क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो आई एम गिविंग यू अ मिनट टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन. ओके, बताइए क्या दिया है इसमें. If the direction of the initial velocity of charge particle is perpendicular to the magnetic field, then the orbit will be, or the path executed by a charged particle whose motion is perpendicular to magnetic field is. So can you imagine how particle is actually moving in a magnetic field? ये स्टेटमेंट में दिए है कि चार्ज पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा. चलो तो 30 के सॉल्व किए थे अपने अच्छे से. of initial velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field. मतलब velocity जो है वो magnetic field को क्या है, perpendicular है. So suppose let us assume that the direction of magnetic field is along x-axis. Okay, the direction of velocity is along y-axis. क्योंकि क्या बोले, velocity जो है particle की वो magnetic field को perpendicular है. So if we assume that the magnetic field is along x-axis, तो उसके perpendicular axis को, suppose y-axis को क्या है, the particle is moving along y-axis. The path executed by charged particle whose motion is perpendicular to magnetic field is. So किस तरीके का path पार्टिकल क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. That is the question. क्या फॉर्मूला था चार्ज पार्टिकल के लिए, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड?
अभी कौन से फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? फोर्स एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस, दैट फोर्स इज गिवन बाय, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वी बार और बी बार, मतलब उन दोनों के बीच में कितना एंगल है? When V bar and B bar are perpendicular to each other, what is the angle between them? 90. 90 रहेगा, थीटा 90 रहेगा, करेक्ट है। Because it is given in the question itself. Question में ही दिए कि velocity of charged particles perpendicular to magnetic field. It means the angle between V bar and B bar is 90 degree. Okay. So if we take magnitude of these, then sin 90. How much is sin 90? 1. 1. So this is the maximum value of sin theta. Sin theta की ये maximum value है. Okay. फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? साइन थीटा के। एंड व्हेनेवर साइन थीटा हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। ये हम लोगों ने देखा था कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, तब चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एंड दैट मैक्सिमम फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन क्यू वी बी। अभी ये एक्सप्रेशन तो पता है हमें, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसीलिए वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड कर रहा है। बट हमें वो फोर्स के बारे में नहीं कैलकुलेट करना है, हमें वो कौन सा पाथ, किस टाइप का पाथ ट्रेस करेगा वो पता करना है। तो किस टाइप का पाथ ट्रेस करेगा पार्टिकल यहाँ पे? If you remember, then in the previous lecture we had discussed this concept that whenever charged particle moving in a magnetic field experiences a maximum force, then that maximum force provides the centripetal force to the particle. जब भी चार्ज पार्टिकल जो भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहे हैं वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो मैक्सिमम फोर्स क्या करते हैं? पार्टिकल को मैग्नेटिक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड सर्कल होगा करता है। आंसर। Yes. So centripetal force is whenever centripetal force acts on the particle, it describes a circular path. So here the option answer will be C, circle. Getting this? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है यहाँ पे कि थीटा जब 90 होता है तो पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स। सो ये आंसर सॉल्व कर, ये आंसर इसका ढूंढने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि व्हेन थीटा इज 90, force experienced by particle is maximum, and whenever particle experiences a maximum force, it provides necessary centripetal force to the particle, and whenever particle experienced centripetal force, it describes a circle. तो ये flow है in which you can go while getting the solution of this question. All are clear with this? Yes, ma'am. Okay, so let's move ahead. First go through this question on your own, then we will discuss. C. So tell me what are the given things?
ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लग रहे हैं? क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में बताओ? Which charges, four charges are given. Yes, their position is shown with arrows. Okay. तो पूछा है कि ये चारों पार्टिकल में से and all are moving with equal speeds. So we don't have to worry about their magnitude. Okay. But they have different directions as you can see here in this diagram. So which charge experiences the maximum force? Okay. और बाकी लोगों का क्या आंसर है बताओ? Then we will discuss it further. सी। ओके अभी सी क्यों आएगा वो भी बताओ मुझे. आई वांट आंसर फ्रॉम यू. जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. सी क्यों आएगा बताओ. व्हाई सी? क्योंकि मैम यहाँ जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल में है ना. यस. सो सिंस अगेन फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑल्सो डायग्राम से क्लियर ही है कि एफ किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा. सो ग्रेटर एंगल जितना होगा उतना ग्रेटर फोर्स होगा. सो यहाँ पे बाकी के इफ यू कंपेयर ऑल दिस फोर्स देन सी हैव मैक्सिमम एंगल थीटा 90 है. एंड व्हेनेवर थीटा इज 90 द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम. यहाँ पे डायरेक्शन से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है एंड सी के vertical है. So C is 90 for this charge particle C. The angle between V bar and B bar will be 90. It's 90. So force experienced by this charge particle will be maximum as compared to others. Good. So let's move towards next now. Okay. Again, very clear. If you have understood this formula properly, F equal to QV sin theta, okay, then you can easily answer this question too. So read this question and tell me what will be the correct answer here. Okay, who is saying C answer? सी होगा आंसर. मुझे check. क्या दिया है क्वेश्चन में देखो. चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b. द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज. सी में क्या दिया है बोलो. ऑलवेज सॉरी जीरो, सॉरी नेवर मैम. डी जीरो. डी सी में डी भी है डी जीरो. डी 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 मैम सॉरी. पक्का है ना? डी या सी? पक्का 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 अभी डी. जस्ट डिस्कस किया था ना. यस अभी मैम. डिस्कस किया हम लोगों ने कि बी और वी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. दोनों में 90 डिग्री एंगल है. थीटा 90 है. परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे से. तो मैक्सिमम फोर्स पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं. यहाँ पे क्या दिए? जीरो इफ बी एंड वी आर परपेंडिकुलर. सो जीरो कब पाएगा? एक्सप्रेशन भी पता है तो भी बता सकते. क्यू वी बी साइन थीटा व्हेन थीटा इज जीरो. थीटा का जीरो मतलब क्या है? बी बार एंड वी बार पैरेलल है एक दूसरे को. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है. पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है. सो इस केस में क्या आएगा? बी और वी पैरेलल. if both particle is moving in the direction of magnetic field, पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो थीटा बी और वी के बीच में एंगल कितने? जीरो है. और व्हेन थीटा इज जीरो साइन जीरो इज हाउ मच? साइन जीरो कितना होता है? जीरो. जीरो. तो फोर्स क्या होगा? जीरो. सो देखो यहाँ पे आगे भी दिए है. फोर्स विल बी जीरो. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज जीरो इफ बी एंड वी आर पैरेलल. So read the question and options properly. ठीक. ये समझ में आया अभी सबको? तो इसमें इस
टाइप के, मतलब क्वेश्चन तो पता है, फॉर्मूला तो पता है, लेकिन ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वी बार और बी बार को परपेंडिकुलर, इसमें की पॉइंट्स ये है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, वी बार और बी बार को परपेंडिकुलर रहेगी। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, देन वी विल मूव टुवर्ड्स different type of question. Okay. Just give me a second. I'm sharing that question too. Okay. Read this question और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। First you read, then I will ask. Okay, Kaveri, are you there? बोलो इसका क्या दिया है क्वेश्चन में। So charged particle given here is proton moving along z axis. In a magnetic field is along x axis. The proton will experience a force. फॉर्मूला समझा अच्छी तरीके से तो क्विकली यू कैन आंसर दिस। क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, जिस डायरेक्शन में वो मूव रहे उस डायरेक्शन में ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी वेक्टर रहेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, व्हाट विल बी द फोर्स experienced by the proton while moving in this magnetic field? B. ओके, किसने डी बोला, मुझे अभी क्यों भी चाहिए क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन से। सो व्हाट लॉजिक यू हैव यूज्ड हियर व्हाइल चूजिंग आंसर, वो भी पता चलना चाहिए। डी गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन बोलना है डी सिलेक्ट करने के पीछे क्या वजह। Your answer is something else, then why you have chosen that particular answer? फॉर्मूला क्या है बताओ एक बार मुझे, force experienced by charged particle in magnetic field. I hope my voice is clear. क्या है फॉर्मूला बताओ जल्दी से। QVB sin theta. QVB sin theta वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, बिकॉज वी आर हियर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूले से अब भी मैंने जस्ट डिस्कस किया है कि फॉर्मूले से ये पता चलता है कि एक बार मतलब फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन दिस वी बार क्रॉस बी बार। फोर्स की डायरेक्शन वी बार क्रॉस बी बार के ऊपर डिपेंड है। उसका मतलब क्या, वी बार क्रॉस बी बार ये जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रहती है। सो जब ये फॉर्मूला हमें बताते हैं वेक्टर फॉर्म इस फॉर्मूले का कि वी बार एफ बार जो है ये हमेशा वी बार को एज वेल एज बी बार को परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों को। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिए देखो, फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वेलोसिटी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्स और जेड दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस रहती है,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ये दोनों एक्सिस को मतलब बी बार और वी बार दोनों को परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है। ये वेक्टर मैट्रिक्स का यूज करके भी ये कर सकते हो, या फिर इजीली मिले से भी पता चले कि हमेशा फोर्स वी बार और बी बार को परपेंडिकुलर रहता है। अनलेस एंड अनटिल हमें बोला गया है कि फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अदरवाइज एज पर दिस द फोर्स acting on any charged particle which is moving in a magnetic field, it will always in the direction of v in the direction perpendicular to v bar and b bar। जैसे इस क्वेश्चन में v बार z एक्सिस के अलोंग है, b बार x एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों को परपेंडिकुलर, सो फोर्स विल बी इन द along the y direction। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट नाउ। समझ में आ रहा है क्या? आई एम आस्किंग टू यू, ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. जिसमें कि आपको सिंपल से सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। अभी ये थोड़े क्रिटिकल एंड थियरी क्वेश्चंस देखिए। अभी दूसरे टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। okay? एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ो खुद से, देन वी विल डिस्कस। पढ़ा क्वेश्चन सबने? Tell me what are the given things, what you have understood by reading this question, after reading this question। क्या क्या दिया है वो तो बताओ उतना। What are the given things? How many conductors, current carrying conductors are given here? टू। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे मैंने या, तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब था मेरे, प्लीज आंसर मी। ओके, सो टू कंडक्टर्स आर गिवन, बोथ कैरिंग सेम करंट और डिफरेंट करंट? डिफरेंट करंट। Yes, one current of 8 ampere and another conductor is carrying current of 6 ampere। Okay. Are they along the same direction? नो मैम। So how they are placed? How these conductors are placed in a given plane? One conductor, as you can see in this image, one conductor is placed along x-axis and another second conductor is placed along y-axis. Okay. And magnetic field at point P। Okay, so ये P point along z axis है, उसके कोऑर्डिनेट से आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स के 0 0 D। मतलब एक्स एक्सिस पे 0 कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट डी है। इसका मतलब ये पॉइंट पी है, इट लाइज ऑन द जेड एक्सिस। जो एक्स वाई ये दोनों एक्सिस को क्या परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे? इट इज एट अ डिस्टेंस डी। इट इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने एट पॉइंट टी। सो हाउ विल यू गो फॉर दिस? अभी ये कंडक्टर्स कैसे बताए? इनफाइनाइट लेंथ वायर्स, सो दिस आर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। And last time we had seen the expression for straight current carrying conductors, magnetic field due to straight current carrying wire। क्या एक्सप्रेशन था वो?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, देखा था ना, उसके ऊपर सॉल्व भी किए थे सम्स। तो आपको एक्सप्रेशंस की जो फॉर्मूले है या फिर एक्सप्रेशन है, यू हैव टू लिस्ट डाउन दोस। सो फॉर अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट, सपोज एक कोई भी वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट which is a distance r from that current carrying conductor. Suppose that wire is carrying current I, then magnetic field at point P, which is a distance r from that current carrying conductor, is given by this expression. उसके लिए expression क्या है? Mu naught upon 4 pi 2I upon r. ये expression है, या फिर you can write down this as mu naught I upon 2r, 2 pi r. किसी भी पॉइंट पे, लास्ट लेक्चर में ही देखा था हम लोगों ने, किसी भी पॉइंट पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वी कैन कैलकुलेट दिस। एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन में देखा था ये। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फर्स्ट राइट डाउन द मैग्नेटिक इंडक्शन, first write down the magnetic induction at point P due to first wire. x axis along जो वायर है 8 which is carrying current of 8 एम्पियर, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। क्या होगा एक्सप्रेशन उसका, क्या लिखना है समझ में आ रहा है? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी फर्स्ट वायर की वजह से, उसका एक्सप्रेशन लिखना है आपको। सो एक्सप्रेशन लिखो और मुझे बताओ क्या आएगा वो एक्सप्रेशन। I have already written the general expression here. फोर म्यू Let नॉट me बाय call पाई डी। the, क्या आंसर बोला? नहीं मतलब वो एक्सप्रेशन लिखा है, फोर एक्सप्रेशन, म्यू नॉट या बाय पाई डी। ओके, मैं ये जनरल फॉर्म में ही लिख रही हूँ उसका। करंट है 8 एम्पियर, इसमें जस्ट मैंने सब्सटीट्यूट किया, और डिस्टेंस कितना लिखा, 4 पाई डी, डी डिस्टेंस पे। सो B1 क्या है, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट वायर। वैसे B2 क्या आएगा, व्हाट विल बी द expression for this magnetic field at point P due to second conductor? Mu naught upon थ्री 4 म्यू pi नॉट is बाय डी। common. Yes, you are solving. I'm just writing here in general. Okay. अभी ये हो गया B1 इट्स ड्यू टू वायर 1 एंड B2 इज ड्यू टू वायर 2 के सेकेंड वायर की वजह से। We have to calculate then. Okay. So we have independently written magnetic field at point P due to wire 1 and wire 2. अभी हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। ओके, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हियर see the point where we have to find out magnetic field, that point is perpendicular uh, to both these wires, okay, current carrying wires, इसलिए net magnetic field यहाँ पे क्या आएगी, I am now just clearing this part so that I can write further. ये पार्ट भी क्लियर करती हूँ, और याद रखना इस केस में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, how we can go for or how we can calculate net magnetic field. So net magnetic field here will be ऐसे की एक्सप्रेशन है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर
क्योंकि जो दो वायर्स की वजह से ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो वायर और ये जो पॉइंट जिस एक्सिस पे है वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन √B1² प्लस B2²। ये वाला एक डेरिवेशन था तुम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में रहेगा मे बी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, वैसे वाला उस सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है। सो ये कैलकुलेट करो अभी। यू हैव वैल्यू ऑफ B1 एंड B2 विथ यू, सो सॉल्व फर्दर एंड टेल मी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग हियर। बी आंसर। बी आंसर आ रहे हैं। बाकी सबको कैलकुलेट करना है और सबको आंसर बताना है क्या आंसर आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग हियर। ओके, डी है आंसर। ये 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों मिला के 400 आएगा, √400। तो √400 का मतलब है 20। सो ये आ गया मेरा μ0 इंटू 20/4πd। सो ये आ जाएगा 5μ0/πd। Yeah, so answer D I'm getting. I'm also getting answer D. So ये समझ में आ रहा है। अगर ऐसे दो वायर दिए कि एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे है और एक्सिस पे, दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो पहले दोनों के लिए वजह से इंडिपेंडेंटली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसके एक्सप्रेशंस लिखने हैं, एंड ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज √B1² प्लस B2²। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, या फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें? लेकिन इसके लिए तुम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उस पॉइंट पे, उसका जनरल एक्सप्रेशन पता होना है। जैसे हम लोगों ने लिखा था μ0/4π2I/r। तो ये पहले ये वाला एक्सप्रेशन पता होना चाहिए इसके लिए कि एक वायर से की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी वायर की वजह से कितनी, देन यू कैन गो फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड। कुछ डाउट किसी को इसमें? एक क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्ले कर रही हूँ, just solve that question. We will discuss that the solution of that question in the next lecture. Okay, क्योंकि ऑलरेडी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। सो आई एम डिस्प्लेइंग दैट क्वेश्चन। You can note down this question or take a screenshot of this. So can anybody just quickly tell me how we can solve this? कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? वायर सेगमेंट्स दिए, okay, 2 segments you can see here or given mention in the question. एक है ACB, ये वाली एक सेगमेंट है आर्क है, और दूसरी कौन सी सेगमेंट है यहाँ पे बताओ? एक ACB है,
आर्क एसीबी दूसरी कौन सी यहाँ पे दिख रही है? टेल मी क्विकली. Another arc which you can see in this diagram. ADB. ADB है. Okay. So कैसे करोगे इसको? And you have to what you have to find out? Magnetic field at center. Okay. So already last time, see, we had discussed about magnetic field at the center of the circular arc or circular current carrying conductor. By considering different conditions, अलग अलग conditions देख के हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल्स. okay? उसमें 2 न्यूमेरिकल्स ऐसे भी थे where you have to find out magnetic field at the center of circular current carrying conductor when arc subtends some angle theta at the center. जैसे पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? ड्यू टू एंटायर सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. किस एक्सप्रेशन से देते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अगर पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेंटर में, तो फॉर दैट यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. लेकिन अगर आर्क है सिर्फ, सपोज I want to find out magnetic field due to this arc. Okay? And suppose this arc is making an angle. ये कुछ arc है, suppose A, B, C. And if I want to find out magnetic field due to this arc ABC, and suppose this arc ABC is making an angle theta. Okay? सबटेंस एन एंगल थीटा एट दी सेंटर, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? सिंपली ये जो एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, उसको क्या करना है? सिंस वी आर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम आर्क, इसको हमें 2 पाई अपॉन थीटा से, थीटा अपॉन 2 पाई से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को. So this is an expression for magnetic field at the center of circle when some arc subtend an angle theta at the center. So expression note down करो और problem note down करो. इसका solution हम next lecture discuss करेंगे. Okay, because you have also another lecture at 6:30 and I have also next lecture after this. So let's not discuss it now, but try to solve it at home. Anyone have any doubt in today's topic? मैम इसको कैसे करें? मतलब दोनों आर्क की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर में, वो एक्सप्रेशन दोनों आर्क के लिए लिखने हैं. ड्यू टू आर्क एसीबी, ड्यू टू आर्क एडीबी लिखना है. और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे हम लोगों ने अभी पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, पहले दोनों वायर की वजह से लिखा B1 और B2 और फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखी. तो लेकिन यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? B2 माइनस B1. क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो यहाँ पे कैसी है. आर्क एसीबी के लिए कौन सी है? आर्क एडीबी के लिए. सो ये क्या आएगा? B2 माइनस B1 नेट मैग्नेटिक फील्ड. डी कैसे लिखना है? ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा है मैंने. अगर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है देन यू हैव टू गो फॉर दिस एक्सप्रेशन. आर्क का ये थीटा अपॉन 2 है. आएगा अभी सॉल्व करने. यस मैम. नोट डाउन किया क्वेश्चन है ना? यस मैम. ओके. बाकी सब लोगों ने तो और इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो क्विकली. कावेरी ना, कावेरी आर यू गेटिंग दिस? यस मैम. ओके. तो आज क्यों आंसर नहीं दी कुछ? मनीषा? यस मैम. मनीषा दे रही थी आंसर. निकिता? निकिता, you are you getting? Yes. Do you have any doubt into this topic? सभी को आंसर देने हैं, जितना भी समझे. you all have to interact. Kaveri, are you saying something? Do you want to say something? Yes ma'am.
Okay, then we can stop here, I think so.